غربت، مہنگائی، بے روزگاری، افراط زر میں اضافہ، پاکستان کی معیشت ڈکلائن کی جانب گامزن، اسٹاک ایکسچینج میں مندی عروج پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں پریس کلب لائیو بدنی ادھارے۔ جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا۔ 26 فروری کی رات جس طرح دشمن نے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ حملہ کیا اور جس طرح وہ اپنے ٹارگٹ مس کر کے ایک افراتفری کے عالم میں بھاگا اور اس کی فارمیشنز تتر بتر ہوئیں، اور جس طرح اگلے ہی دن 27 فروری کو وہ اپنے ملک کے دفاع میں بری طرح ناکام رہا، اور یہ دشمن کی فضائیہ کی کارکردگی پہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور یہ رہتی دنیا تک یہ سوالیہ نشان قائم رہے گا۔ 26 فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور 27 فروری کو جو ہم نے کیا، اس میں بڑا فرق تھا۔ وہ آئے رات کے اندھیرے میں، اپنے ٹارگٹ مس کیے اور افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے۔ اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ ہم گئے، ہم نے ان کے جو ہمارے انٹینڈڈ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا، اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے ٹو چیلنج دیئر ایئر ڈیفینس کہ سی وی آر ہیئر، جسٹ کم اینڈ سی واٹ از پاکستان ایئر فورس۔ الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایئر فورس کیا چیز ہے۔ جب پلوامہ انسیڈنٹ ہوا 14 فروری کو، اس کے بعد اور زیادہ کلیئر ہو گیا ان کی ملٹری سٹیٹمنٹس اور ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے کہ وہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ میں نے جیسے کہا کہ 2018 کے آخر سے اپنی منصوبہ بندی کر لی تھی کہ ہم کیا کریں گے ان کے بدلے میں۔ اٹ واز نیور اے سرپرائز۔ رکابوں کے تسلط پر فضائیں ناز کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر ہوائیں ناز کرتی ہیں۔ محافظ ہو جہاں محمود عالم سا کوئی بیٹا، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں ناز کرتی ہیں۔ پاکستان ایئر فورس دنیا کی چند بہترین ایئر فورس میں ٹاپ ایئر فورس میں شمار ہوتی ہے، جس کا اگر رینکنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید ٹاپ 1 ہے۔ وسائل کی کمی کے باوجود ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے جوانوں کا، ہمارے افسران کا جو جذبہ شہادت ہے، جذبہ حب الوطنی ہے، وہ کسی اور قوم کی میراث نہیں ہو سکتی، صرف یہ ہماری ہی میراث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں جب ہمارے دشمن نے رات کے اندھیروں میں پاکستان کی مقدس سرزمین پر حملہ کیا تھا، تو یہ پاک فضائیہ ہی تھی کہ جس نے دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ 14 دن کی جنگ میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے اپنے سے 4 گنا بڑے دشمن کو نیست و نابود کر دیا، اس کے تمام ایئر بیسز تباہ کر دیے، اس کی فضائیہ کو ناکارہ کر دیا۔ یعنی جنگ کے تیسرے دن فضاؤں میں صرف پاک فضائیہ کا راج تھا۔ پاک فضائیہ کے اس تسلط کو ایم عالم، سرفراز رفیقی، محمود بخاری یا سیصل چودھری جیسے بے شمار ہمارے ایسے افسران ہیں کہ جنہوں نے اپنی قربانیوں اور اپنی جذبہ حب الوطنی کو اس طرح اپنی جانیں اس ملک پر اس طرح نچھاور کی کہ دشمن دھنگ رہ گیا، اور پاکستان کی ایئر فورس کا تسلط پورے سب کانٹیننٹ کی فضاؤں میں تھا کہ دشمن شاید اپنا جہاز اڑانے سے پہلے سوچتا ہوگا کہ اسے اگر اس کا جہاز اڑے گا تو پاک فضائیہ اسے تباہ کر دے گی۔ پریس کلب لائیو ود میاں طارق کے اسپیشل ایڈیشن میں آج ہم بات کریں گے اس دشمن کی کہ جس نے رات کے اندھیرے میں 65 میں پاکستان پر حملہ کیا، پھر ہمیشہ وہ اسی طرح مکاریوں اور یاریوں کا سے کام لیتے ہوئے اس ملک کے خداداد پر حملے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ ہمیں پاکستان کو ڈے ون سے اس نے تسلیم نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارا دشمن ہمیں تباہ کرنے کی کچھ سازشوں میں ملوث ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سازشیں، لیکن اس کو شاید یہ غلط فہمی اس کی ابھی تک دور نہیں ہوئی کہ وہ اپنی عددی برتری کو شاید اس کے برتے پہ وہ پھر کوشش کرتا رہتا ہے، حالانکہ متعدد بار اسے ناکوں چنے چبوا کر اس کے دانت کھٹے کیے جا چکے ہیں، لیکن وہ دشمن باز نہیں آتا، کیونکہ ہندوتا کا پجاری، بتوں کا پجاری، وہ ہندو مکار جو کہ چانکیا کا فلسفے کا قائل ہے،
वो उसी फलसफे को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस रहता है। पाक फिजाइया हो, पाकिस्तान एयरफोर्स हो, पाकिस्तान आर्मी पाक फिजाइया हो, पाकिस्तान आर्मी हो, पाकिस्तान बहरिया हो, हर जगह मौजूद हमारी इस वतन के बेटे अपनी जानें इस वतन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी तरफ भारतीय फौज में से जब कभी जंग की खतरा हो या जंग की बात हो तो लोग छुट्टियां लेने पर मजबूर हो जाते हैं और छुट्टियां लेकर घरों को चले जाते हैं। आते हैं, बात करते हैं। हमने देखा है कि 2003 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुआहदा हुआ था, भारत ने मुतअद्दिद बार इसका, मुतअद्दिद नहीं बल्कि इसको हजारों बार अगर कहा जाए तो बेजा ना होगा कि उस लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म बर्बरियत की तवज्जो दुनिया की तवज्जो से हटाने के लिए वो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की साजिशें और कॉन्स्पिरेसीज करता रहता है। अपने मुल्क में खुद दहशत गर्दी करवा कर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है और फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ड्रामे करके दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। भारत ने 2 साल पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसके बारे में उनका आज तक वो कोई एक साबित नहीं कर सके, एक सबूत भी मुहैया नहीं कर सके। अक़वाम आलम इस बात पर दंग है कि वो कौन सी ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है कि जिसमें भारत के पास कोई सबूत नहीं होता। फिर 2019 में भारत ने एक दफा फिर बालाकोट पर हमला करने की कोशिश की रात के अंधेरे में और मिसाइल फेंक कर चले गए जिससे चंद दरख्त और 3-4 कौवे शहीद हुए। और जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और पता नहीं मदारिस और पता नहीं क्या क्या दहशतगर्दी के कैंपों का जिक्र करके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन वो साबित आज तक कुछ नहीं कर सका। फिर उसका अगला दिन शुरू होता है जब पाक फिजाइया के जवान जब वार्निंग देकर कि हम इस का बदला लेंगे, इंडिया पर टारगेट करते हैं, इंडिया के टारगेट्स लॉक करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान बहरिया सब एक्टिव होते हैं। तो हमारी फिजाइया जब फिजाओं में हमारे जवान, हमारे शाहीन जब मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में जब भारतीय 2 जहाज पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी, विंग कमांडर नोमान अली जैसे दीगर जवान जब ऊपर फिजाओं में मौजूद होते हैं तो दुश्मन के 2 जहाज़ों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाता है। और इसी एक जहाज़ का मलबा और पायलट ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में उतरता है, जिसको पाकिस्तान के अवाम पहले पकड़कर तो जूतम परेड करते हैं। बड़ी इज्जत अफजाई के साथ उसकी चित्रौल होती है और उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के जवान जाकर उसे रेस्क्यू करते हैं, उसे बचा के लेके आते हैं। और फिर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसको बड़ी इज्जत अफजाई के साथ चाय भी पेश की। आज उसी चाय की सालगिरह का दिन है। अभिनंदन पाकिस्तान आया और यहाँ खड़े होकर उसने चाय का लुत्फ उठाया, चाय पी और उसके बाद पाकिस्तान ने से 2 दिन के बाद बाइज्जत तरीके से वापस भिजवा दिया। लेकिन इसी दौरान एक और भारतीय तैयारा जिसका मलबा, जिसे तबाह किया पाकिस्तान फिजाइया ने, और उसके बाद उसका मलबा भारतीय इलाके में जाके गिरा और जब वो मलबा गिरा उसको उठाने के लिए जाने वाले भारतीय हेलीकॉप्टर को ही भारतीय फिजाइया ने खुद हिट कर दिया, जिसमें 6 अफसर और जवान जो हैं उसमें मारे गए। ये सारी सिनेरियो है कि भारत का नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड और नॉन प्रोफेशनल रवैया है जो जिसको साबित करता है कि भारत कभी भी एक संजीदा मुल्क या संजीदा हुकूमत की तरह उनकी मुसल्लह अफवाज भी गैर संजीदा नजर आती। भारतीय फिजाइया और भारतीय आर्मी चीफ्स की जानिब से हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयानात जो होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की फिजा को में इजाफा तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जिम्मेदाराना रवैया हमेशा इस कशीदगी को कम करने में मदद देता है। लेकिन भारत अभी तक बाज नहीं आया। वो इसी तरह के बहुत सारे उच्चे टिकंडे करता रहता है, पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के ड्रामे करता रहता है, अपने ही मुल्क में अपने ही लोगों को मारकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाकर सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने ढूंढता है। लेकिन उसे शायद ये याद नहीं है कि 65 में अद्दी बर्तरी होने के बावजूद पाकिस्तान फिजाइया ने अगर उसका नेस्तो नाबूद कर दी थी, भारतीय फिजाइया को नेस्तो नाबूद कर दिया था, तो आज तो हम तैयारा साजी में खुद कफील हैं। F-16 का हम पल्ला JF थंडर 17 हमारा अपना तैयारा हमारे पास मौजूद है। JF थंडर 17 ये वही तैयारा है कि जिसने 27 फरवरी 2019 को भारतीय फिजाइया का गरूर खाक में मिला दिया था, जिसमें फ्रांस से लिए हुए सरखोई या इसराइली तैयारों की मौजूदगी के बावजूद भारतीय फिजाइया नाक रगड़ने पर मजबूर हो गई। उसके बाद उसी दिन पाकिस्तान ने
इंडियन आर्मी के बहुत सारे 6 टारगेट्स को फिक्स किया और उसके बाद उन टारगेट से थोड़ा से फासले पर स्ट्राइक करके उनको बता दिया कि हम चाहते तो उस वक्त मौजूद भारतीय आर्मी की क़यादत जो कि उस जगह मौजूद थी उसको भी उड़ा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको सिर्फ वार्न किया। लेकिन भारतीय फ़िज़ाइया, भारतीय मीडिया और भारतीय आर्मी ये सारे मिलकर जिस तरह के ड्रामेबाजियाँ करते हैं, शायद हमारे यहाँ इस तरह का रवाज नहीं है, इस तरह का फैशन नहीं। लेकिन भारत हमेशा की तरह फिर साजिशों में मसरूफ़ है। हमने अभिनंदन को चाय पिलाकर अभी चंदन बनाकर वापस भेज दिया और वही अभिनंदन पहले तो जाकर ग्राउंड रहा और फिर जब वो दोबारा फिर उसने एयरफोर्स ज्वाइन की है तो अब उसका हुलिया भी काफ़ी बदल चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों के हाथ लगने के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। पाक फ़िज़ाइया यकीनन उन अजीम सपूतों, अजीम अफसरान, अजीम शोहदा की वो मिरास है कि जहाँ एक कमसिन पायलट ऑफिसर राशिद मनहास जब अपने दुश्मन को नाकाम करता है तो निशान हैदर पाता है। यहाँ मसला सिर्फ निशान हैदर का नहीं है, यहाँ मसला है शहादत का, जज्बा शहादत का, जहाँ पर हर अफसर, जवान और सिपाही जज्बा शहादत लेकर हमारी मुसल्लह फ़ौज में आता है। और यही वो जज्बा है जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया भर की मुसल्लह अफवाज से इसको मुमताज़ करती है और पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनने की जानिब गामज़न है। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी को क्या हुआ उस पर बात करेंगे। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे, अभी उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि इस वक्त भारत का रवैया क्या कुछ तब्दीली आई है या भारत फिर अभिनंदन की तरह किसी और को भेजने की हमाकत कर सकता है। अभी आपने सीनियर्स की गुफ्तगू सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि दुश्मन हमारा जितनी भी कोशिशें करता रहे लेकिन पाक फ़िज़ाइया हमेशा चौकस रहती है। पाक फ़िज़ाइया में एक और जो कामयाबी हासिल कर ली है कि पाकिस्तान के पास JF Thunder 17 का ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 के बाद ब्लॉक 4 जो आ रहा है वो दुनिया के किसी भी जदीद तरीन तैयारे से का हमपला होगा और जिसके बाद दुश्मन हमारा यकीनन जो है वो उसके मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर वसाइल टेक्नोलॉजी की बात की जाए, पाकिस्तान के पास अगर एटमी टेक्नोलॉजी की बात की जाए और पाकिस्तान के पास जो टैंक हैं वो जो खुद हमने बनाए हैं अल खालिद टैंक, ये सारा असला वो है जो हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो हम दुनिया को बेच भी रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे दुश्मन को ये सोचना होगा कि जो रिश्वत के ज़रिए या किक बैक्स के ज़रिए जब असला ख़रीदता है तो फिर उसका वो असला सिर्फ असला नहीं काम करता, असले के पीछे जो बैठा हुआ जवान होता है, जो दिल होता है, जो शेर दिल होता है, वो काम करता है। मशीन होती है लेकिन उसको चलाना हर किसी के दिल गुर्दे का काम नहीं है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान बहरिया के जवान उस दिल गुर्दे के हामिल हैं, उस दिल गुर्दे के मालिक हैं। उनकी तरबियत इस अंदाज में होती है कि वो ना मौत से डरते हैं, मौत की आंखों में आंखें डालकर फिर वो कैप्टन कर्नल शेर खान की तरह लड़ते हैं कि जो कि दुश्मन के मोर्चों में घुसकर उनको तबाह बर्बाद कर देता है, कि जिसके लिए फिर भारतीय आर्मी ऑफिसर्स को, ब्रिगेडियर रैंक के बंदे को, ऑफिसर को उसकी जेब में पर्ची लिखकर भेजना पड़ती है कि ये बहुत बहादुर आदमी है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन जितना भी कम ज़र्फ हो लेकिन वो पाकिस्तानी जवानों की बहादुरी का कायल है। अभी बात करेंगे AVM आबिद राव साहब, एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब से, उनसे पूछेंगे कि 27 फरवरी कैसा रहा और भारत को चाय जो पेश की गई अभिनंदन को, उसका भारत अभी तक जश्न मना रहा है या यौम सोग मना रहा है अभी? जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर मार्शल जफर मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त फराहम किया और यकीनन ये बड़ा ऑनर की हमारे लिए बात है कि डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स ने 65 में, 71 में हमेशा बहुत अच्छा रोल प्ले किया। 65 की जंग में अगर पाकिस्तान ने फतह हासिल की तो उसका कलीदी किरदार पाकिस्तान एयरफोर्स थी। MM आलम हो, सरफराज रफ़ीकी हो, महमूद बुखारी हो, ये वट एवर सो जितने भी हमारे तमाम एयरफोर्स के हीरोज़ हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम उनको सलूट पेश करती है। ये फरमाइएगा कि 27 फरवरी 2019 को जो वाक़या हुआ था, भारत की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक का एक ड्रामा किया गया, 2 तैयारे उनके पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों के पीछे आए और उनको जब वो पाकिस्तानी टेरिटरी में आए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनको मार गिराया
اور ان کا ایک پائلٹ آفیسر ابھینندن جو کہ پاکستانی ایریا میں گرا، اس کو جب بعد میں ریسکیو کیا گیا، اس کے بعد پاکستان نے امن کا ایک میسج دیتے ہوئے ابھینندن کو دوسرے دن باعزت طریقے سے واپس بھجوا دیا، چائے بھی پلائی، وہ اس چائے کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں اگر بھارت دوبارہ اس طرح کی کوئی سرجیکل سٹرائک کرتا ہے تو پاکستان ایئر فورس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کوشچن آپ نے جو پوچھا ہے۔ میں اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں ہسٹری میں آپ کو لے جاؤں کہ جی کیا یہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو۔ جی جی یور ایئر فورس پاکستان فضائیہ کا جو کارکردگی رہی ہے جی جی وہ الحمدللہ دونوں جنگوں میں مطلب پاکستان ایئر فورس ہیز ڈن ویری ویل، بہت ہماری کارکردگی اچھی رہی ہے۔ جی ابھی یہ جو 27 فروری کا واقعہ ہے، جی اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بتا دیا تھا کہ if you hit we will hit back، یس ٹھیک ہے نا، if you remember، جی and Indians used Indian Air Force to جی come and strike at Balakot which they failed miserably۔ جی وہ جب ان کی وہ مطلب why they failed is a different story altogether، جی جی but they failed miserably۔ جی اس کا جواب جو پاکستان ایئر فورس نے دیا، جی اگر آپ نے جو 7 سپٹمبر کا پروگرام دیکھا ہوگا اس میں کسی ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف آپریشنز نے پورا دکھایا تھا کہ جو ہم نے مطلب جو بم مارے تھے، گائیڈ فارم تھا، وہ جا رہا تھا ان کے ہیڈ کوارٹر پہ بریگیڈ، اینڈ جسٹ شارٹ آف دیٹ انہوں نے اس کو رائٹ لیفٹ ڈیفلیکٹ کر دیا، کیونکہ پاکستانی پرائم منسٹر نے کہا تھا کیونکہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا ہے تو وی ول ناٹ ایکسٹریکٹ ہیومن what you call casualties۔ بالکل ٹھیک۔ تو بیسیکلی ہم نے اپنا جو ہے نا ہماری کیپیبلٹی، ہماری پائلٹس کی فلائنگ ایبلٹی ڈیمونسٹریٹڈ۔ جی یہ جو ونگ کمانڈر ابھینندن کو مارا اور دوسرا MiG-21 اور پھر ایک سو 30 جی تو آفیشلی کلیم نہیں کیا کیونکہ اس کا جو ریکیج ہے وہ ہمارے مطلب LOC کے دوسرے سائٹ پہ گیا ہوگا، اس کو ہم نے کنفرم کے لیے، بٹ ابھی ونگ کمانڈر ابھینندن جو ویری سینئر پائلٹ جی یہ نا مطلب ونگ کمانڈر جو ہے نا پانی میں سمجھے ایک لیفٹیننٹ ہوتا ہے جو ویری سینئر پائلٹ، اس کو مارا، اینڈ جو ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کی وہ دنیا نے دیکھا، وہ ٹی وی میں اگر اس نے خود کہا جی کہ پاکستانیوں نے اس کی ٹریٹمنٹ کیسی کی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہ جو پورا جو ہمارا ایئر فورس نے اس آپریشن کا نام دیا تھا سوئفٹ ریٹارٹ، جی سوئفٹ ریٹارٹ، یعنی کہ ہم نے جو ہے نا جواب جو ہے ود ان 24 hours 30 ہم نے جواب دے دیا تھا جی، اور اس دینے کے بعد انڈین کے جو آرم فورسز ہیں، ایئر فورس، آرمی، نیوی، جو بھی ان کے ہیڈ ہے ان کو پتا یہ وی وانٹڈ تو یہ پاور ہم نے کروانا تھا جی کہ ایئر فورس کی کیپیبلٹی یہ ہے۔ اچھا سر، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہاں میں خطا کلامی کی معافی چاہتا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس کی پروفیشنلزم جو ہے اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ انڈین ایئر فورس یا انڈین آرمی کا پروفیشنلزم ایسا ہے کہ جب انڈین طیارہ گرا اس کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کا اپنا ہی ہیلی کاپٹر گیا، اور وہ جب واپس آ رہا تھا تو انہوں نے خود ہی اپنے ہیلی کاپٹر کو ہٹ کر دیا، اور پاکستان سے اگر غبارہ بھی چلا جائے، کبوتر بھی چلا جائے تو پورے انڈیا میں دوڑیں لگ جاتی ہیں، کیا وجہ ہے یہ؟ جب سے اصغر خان صاحب میں گاڈ بلیس ہم پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف تھے، جی جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایئر فورس کو، ایکچولی ہم انہیں فادر آف دی ایئر فورس بھی کہتے ہیں، جی جی انہوں نے ایئر فورس کو بہت مثبت لائنز پہ بنایا، فاؤنڈیشن لے کی۔ جی اس کے بعد 65 وار میں وی ور ویری لکی ٹو ہیو ایئر مارشل نور خان، جی جو ایک ایگریسو، بولڈ اینڈ کریجس لیڈر تھے، انہوں نے 65 وار میں لیڈ کیا، اور اس کے بعد جی اور اس کے بعد سے جتنے بھی ہمارے چیف آتے رہے ہیں، جی جی اب ایئر فورس کی جو پرائم ایمفیسس از آن کمبیٹ ٹریننگ، جی ٹھیک ہے نا، اور مطلب میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم
दुनिया में फजाइया होंगी जिसके कॉम्बैट ट्रेनिंग पे इतनी एम्फेसिस वो देते हैं जितना हम देते हैं। जी ठीक है, आपने पिछले दिनों में खाली एक प्रोग्राम भी देखा होगा, वो CCS के बारे में, कॉम्बैट कमांडर्स स्कूल, और वहां जी पे जी जो जी बिल्कुल बिल्कुल देखा। ठीक है ना। तो जो प्रीमियम है फाइटर पायलट के लिए, एयर डिफेंस कंट्रोलर के लिए, जो ये पायलट कंट्रोलर टीम कॉन्सेप्ट बनता है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स, मैं ये कह सकता हूँ वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सही, बिल्कुल ठीक। Our pilots and our air defense controllers are Yeah. one of the best. बेशक अभी ये जो उन्होंने 2 जहाज मारे हैं, जी ठीक है ना, इसमें जितने मतलब पायलट के अपनी वो जो कॉम्बैट एफिशिएंसी आपको आई, जी यू नो, उतने ही हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स भी थे, एंड ऑल बेशक दोस पीपल बेशक बेशक बेशक। और एंड जो पाकिस्तानी कौम को, जैसे आर्मी में होना चाहिए, प्राइड होनी चाहिए, नेवी में, मैं एज एन एयरफोर्स ऑफिसर कहता हूँ वी शुड बी प्राउड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। बेशक नॉट के मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में मैंने 35 साल नौकरी की, नहीं सर, वी आर गुड, हम जो है ना कॉम्बैट एफिशिएंसी, कॉम्बैट ट्रेनिंग जी पायलट्स की और कंट्रोलर्स की हमारे, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सही। और ये आप देखें जो वॉर अगेंस्ट टेरर में जो पाक फिजाइया का किरदार रहा है, जी ये सारी दुनिया इसको मानती है। ठीक है मतलब पाकिस्तान आर्मी का तो है ही है, बेशक लेकिन मतलब उसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स की कोऑर्डिनेशन जी और एयरफोर्स के जो जाके जो मतलब वॉर अगेंस्ट टेरर में जॉइंट ऑपरेशंस आर्मी के साथ करना, जी मतलब ये मैं कह सकता हूँ इट्स वन ऑफ द बेस्ट, एंड यू नो एयर फोर्सेस ओवर द वर्ल्ड दे एक्नॉलेज दैट। बेशक सर, वजह तौर पे हमारे यहाँ यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान की हिफाजत 3 एज करते हैं, अल्लाह, आर्मी और एयरफोर्स। खैर ये तो आप कहते हैं सर, अब ठीक है ना, लेकिन जब आप ये कहते हैं तो हमारा दिल और जो है ना जी बढ़ जाता है। बेशक बेशक खून में जो है खून की दर्जा है जी। वो ज्यादा हो जाता है। बेशक। इट्स गुड, इट इज गुड। सर मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, लेकिन आखिर में मैं चाहूँगा कि एज अ एयरफोर्स वेटरन के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के को आपने ज़ाहिर डेफिनेटली जिस ओहदे से आप रिटायर्ड हुए हैं तो वो आपने लीड किया है, और एक लीडर की हैसियत से आप क्या मैसेज देंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के यंगस्टर्स को, नौजवानों को जो इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स में है, या वो नौजवान पाकिस्तानी जो एयरफोर्स में आना चाहता है? देखिए, आई विल कोट कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी, उनका एक है बहुत, Allah has God has given us a grand opportunity to prove ourselves as an architect of a new state, या and let it not be said that we did not prove equal to the task. ठीक है ये जो आखिरी 2 है ना जी लाइन, इस पे मैं जब मैं था एयरफोर्स में, मैं अपने बच्चों को, अपने जूनियर ऑफिसर्स को मैं यही कहता था कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर एट ऑल टाइम्स, जी and let it not be said that we were not equal to the task. And alhamdulillah, you know, your air force will not let you down. ठीक ये तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है ये मैं कह सकता हूँ। And for the youngsters जो कि एयर फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जी उनके लिए पैगाम है कि एयर फोर्स इज अ वेरी थ्रिलिंग कैरियर, फाइटर फ्लाइंग इज अ वेरी थ्रिलिंग कैरियर। अगर आपको थ्रिल भी चाहिए, आप एक प्रोफेशनल भी होना चाहते हैं, और आप मुल्क और कौम की खिदमत भी करना चाहते हैं, तो एयरफोर्स एक वो है, आप पाकिस्तान की सर्विस है जहाँ पे हर चीज आपको मुहैया होती है। ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा कि जो 27 की भारत की जानिब से कोशिश थी उसको जो नाकाम बनाया है, आप उसमें किसको क्रेडिट देंगे? पाकिस्तान फिजाइया के उन जवानों को जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, क्या फरमाएंगे आप? उनके जो ऑपरेशंस के और बाकी जो PSOs है, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, ये उनका डिसीजन था, जी वेरी वेरी डेलिब्रेट डिसीजन, दैट जो हम इसका जो है ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। जी और जो हमारे फिजाइया के जो पायलट्स है, जी। यंगस्टर्स, विंग कमांडर,
और जो थे, they did their, उन्होंने अपना काम सुलझाने किया। ठीक है तो ये पूरे ऑपरेशंस का मैं एज एन आउटसाइडर जी, मैं कहता हूं कि ये चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उन्होंने अपना करेज, बोल्ड डिसीजन मेकिंग जी, ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो सरबराह है, जी, he is बोल्ड, एग्रेसिव और पीछे हटने वाले नहीं हैं। जी, और ये मुल्क और कौम के लिए ये एक मेरे ख्याल है बड़ी खुशाइन बात है जी। कि अभी इस चीफ जो अभी हमारे हैं, जी। इन्होंने और इनके जो प्रिंसिपल सर ये तो हमारे लिए बड़े एजाज की बात होती है कि हमारे एयर चीफ जो है खुद बाकायदा ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, और पीछे नहीं हटने वाले हैं बेशक इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया जफर मिर्जा साहब, Thank आपका, आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये थे एयर मार्शल रिटायर्ड जफर महमूद मिर्जा साहब, जिनका कहना है कि पाकिस्तान एयरफोर्स का प्रोफेशनलिज्म, पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ का प्रोफेशनलिज्म और उसका जो जज्बा है बहादुर और निडर होना, यही पाकिस्तान एयरफोर्स को एक दुनिया की एयरफोर्सेज में मुमताज़ मुकाम दिलाती है। लेकिन क्या कहेंगे कि अब इस सारी सूरत हाल में कि जब अभिनंदन को पाकिस्तान में जो ट्रीटमेंट दी गई, अभिनंदन ने पाकिस्तान में क्या कहा, फिर उसका जब मैसेज चला तो उसके बाद इंडियन मीडिया जो था उसका वो मैसेज जो था उस वीडियोस को डिलीट करवाना चाहता था, और उन्होंने बाकायदा कहा कि अभिनंदन का ये जो मैसेज है इसको डिलीट किया जाए, वायरल ना होने दिया जाए। लेकिन फिर भी वो मैसेज पूरी दुनिया तक गया। उस मैसेज को देखते हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा तो मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे इन लोगों से बचाया, मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे मेरी जांच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बढ़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। नाज़रीन, आपने अभिनंदन का भी मैसेज देखा। अभिनंदन का पाकिस्तान की एयरफोर्स आर्मी के बारे में जो कहना था वो यकीनन आपने देख लिया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और आर्मी एक प्रोफेशनल्स है, और इन्होंने जो उसके साथ प्रोफेशनल अंदाज में गुफ्तगू की, उसे बगैर किसी तशद्दुद के या बगैर किसी चीज़ के उसने अपना सब कुछ बताया। और फिर उसके बाद जिस तरह उसकी ट्रीटमेंट की गई, जिस तरह उसको रखा गया 2 दिन और जिस तरह उसको वापस भेजा गया, वो डेफिनेटली पाकिस्तान ने एक पूरी दुनिया एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद राव साहब। जी वालेकुम सलाम। बल्कि डॉक्टर आबिद राव साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा, 27 फरवरी एक ऐसा यादगार दिन है कि जब हमारे 2 जवानों ने स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी, विंग कमांडर नोमान अली और उनकी पूरी टीम ने भारत को नाको चने चबवा दिए और 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, और अभिनंदन की सूरत में एक पायलट ऑफिसर को कैद भी किया, जिसको पहले पाकिस्तानी अवाम ने अच्छी तरह चित्रौल करने के बाद आर्मी के हवाले किया। कैसे देखते हैं जो पाकिस्तान फिजाइया ने, पाकिस्तान ने मेजबानी की अभिनंदन की, जो चाय उसे पेश की, उसको आप कैसे देखते हैं? इस चाय पेश करने पर भारत क्या अभी तक यौम सोग मना रहा है? देखिए, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि उसने हमारा एयरफोर्स की बड़ी इज्जत रखी, और चूंकि जब एयर कॉम्बैट में डिफरेंट 7-8 जहाज मिलते हैं, जी जी, तो कोई इस कंफ्यूजन में फॉग ऑफ वॉर जिसे कहते हैं, जी जी, जैसे उन्होंने उस दिन अपना हेलीकॉप्टर भी एक गिराया था, जी, ये जी, समझ गए ये पाकिस्तानी जहाज है। सही। तो उस दिन खुदा का शुक्र है
کہ خوش نصیبی ہماری طرف تھی. باقی یہ میں نے ہمیشہ پچھلے 1-1.5 سال سے ہر چینل پہ ایک بات کہی ہے کہ جو نریندر مودی کا جو پولیٹیکل بیانیہ ہے نا اس کی آرم فورسز کیری کرنے لائق نہیں ہے. صحیح. وہ اس کو نہیں کیری کر سکتی وہ نفرت, کیونکہ اس کے لیے خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں کہہ لیں آپ, جتنی کمزور ان کی ایئر فورس ہے یا جتنی وہ ماڈرنائزیشن کی اس کو ضرورت ہے اتنی ہوئی نہیں اس کی. صحیح. ان کے جہاز کم ہیں, پرانے ہیں, اور کوئی جنگ کے لیے ایسا موقع یا اس کا جو موٹیویشن ہے نا ان کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بڑا کرم کیا, اس دن ان کا سارا غرور ایک ہی دن میں آ کے زمین پہ گرا ہے, ورنہ 26 تاریخ کو ہم لوگ سارے بڑے ڈپریس تھے, جس طرح انڈین میڈیا دکھا رہا تھا کہ انہوں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے. اور 27 کو جب صبح اٹھے ہیں تو یہ اچھی خبر سننے کو ملی, انہوں نے خفت مٹانے کو اس کے نام ایک F-16 کر دیا کہ اس نے اس کو گرایا ہے. حالانکہ اس کا جو ریکیج یہاں گرا اس میں 4 میزائل بھی ہمارے لوگوں نے ریکور کر لیے تھے, اور وہ آج بھی یہاں ایئر فورس کے میوزیم میں بالکل موجود ہے, ڈسپلے پہ ہیں. جی. تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا وہ دن تھا. دیکھیے ہماری ایئر فورس نے ہمیشہ ان کے خلاف بہت اچھا کیا ہے. 65 وار لے لیں, 65 کے بعد 71 میں بھی ویسٹ پاکستان میں پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی بری نہیں تھی, لیکن وہ اوور آل چونکہ ملک ٹوٹ گیا اور ہمارے قیدیوں تو چلے گئے ایسٹ پاکستان والے, تو وہ ساری باتیں اس میں دب گئیں. اس لیے بس یہ کہنا, ہم نے میرا خیال ہمیشہ ایک تو بہتر جہازوں پہ توجہ دی ہے. ہمارے پاس 65 میں F-104 تھے جو سپرسونک تھے, ان کے پاس سپرسونک کوئی جہاز نہیں تھا. ہم نے ہمارے پاس B-52 بمبار تھے, B-52 کا تو ایکویولنٹ تھا ان کے پاس کینبرا, لیکن F-104 کا برابری کا کوئی جہاز نہیں تھا. لیکن سر اس کا B-52 کا جو بمبار کا جو ہم نے استعمال کیا وہ شاید کبھی وہ نہیں سوچ سکتے تھے. دیکھیے B-57 تھا ہمارے پاس, B-52 تو امریکہ نے کسی کو نہیں دیا. اچھا. تو B-57 تھا جس کا ایکویولنٹ کینبرا تھا ان کے پاس. صحیح. اور ہم نے وہ جہاز بھی جو تھے 65 اور 71 میں بہت افیکٹولی یوز کیے. ہمارے بامبر پائلٹس تو خاص طور پہ بہت تعریف کے مستحق ہیں. ان کی جتنی انہوں نے ڈیرنگ حرکتیں کی ہیں, آگرہ تک گئے ہیں اور انہوں نے وہ اٹیک کیے ہیں. خصوصاً سرفراز رفیقی, فیصل چودھری یا محمود بخاری صاحب ابھی حیات ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت دے. یقیناً یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں کہ جن کا جذبہ حریت یا جذبہ شہادت جو تھا وہ ہماری ایئر فورس کے لیے رول ماڈل بن گیا کہ 65 میں اور پھر 71 میں جس طرح ہماری ایئر فورس نے کام کیا. اصل مسئلہ یہ مشین کے ساتھ ساتھ جذبہ کتنی اہمیت رکھتا ہے سر؟ دیکھیے جذبہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جذبے بیکاز ہمارا جب کیڈٹ آتا ہے رسال پور میں اس کو 2-3 چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم نے ہمیشہ اپنے سے بڑی ایئر فورس سے لڑنا ہے, تو تمہاری ٹریننگ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے لیے اب ہر جنگ جو ہے نا وہ سروائیول کی ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں ہارنے کی آپشن نہیں ہے کوئی. صحیح. تو آپ نے مطلب وہ جسے ہم ایک عام زبان میں کہتے تھے نا کہ مرو یا مر جاؤ, ہاں جی, وہ ایکچولی یہی حال ہے. دیکھیں یہ ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے یہاں کہ چھوٹی ایئر فورس, دنیا میں اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں ہمیشہ چھوٹی ایئر فورس جیتتی ہے. آپ اسرائیل اور عربس کا حال دیکھ لیں. اسرائیل کی بہت چھوٹی ایئر فورس ہے سارے عربوں کے حساب سے, لیکن ان کو ناکوں میں وہ چنے چبانے والی بات ہے. پاکستان ایئر فورس ہمیشہ چھوٹی رہی ہے اور رہے گی انڈیا کے مقابلے میں, لیکن اس کا ہم نے اکاؤنٹ ان کو زیادہ نقصان پہنچا کے دینا ہے. صحیح. تو یہ ہماری ٹریننگ ڈاکٹرن میں ہے. کامبیٹ کمانڈر اسکول میں بھی یہی سکھاتے ہیں کہ آپ نے کم اس پہ لڑنا ہے, لیکن ایک ناقابل تلافی نقصان آپ نے اس کو پہنچانا ہے. اچھا, دوسری یہ کہ اگلی جنگیں جتنی بھی ہوں گی وہ لمبی نہیں ہوں گی. وہ 7 دنوں سے لے کے 14 دنوں تک کی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہماری ڈاکٹرن بھی ایسی ہے کہ آپ نے پہلے چند دن میں بے تحاشا نقصان پہنچانا ہے تاکہ وہ جنگ بندی پہ مجبور ہو جائے. لمبی جنگ نہ وہ افورڈ کر سکتے نہ ہم کر سکتے. یہ وہ ایران عراق والی جنگ نہیں جو 8 سال چلی تھی, کہ ایک سٹیج آ گئی تھی کہ 7-8 دنوں میں 4 جہاز اڑتے تھے ایران سے, وہ جا کے وہاں 2 بام پھینک آتے تھے, پھر اگلے ایک ہفتہ وہ نہیں ہوتے تھے.
तो ये वाली जंग हमारी जब भी हुई बड़ी इंटेंस होगी। दूसरी एक चीज मैं आपके चैनल पे ही कहना चाहता हूँ कि अगली जंग जो है ना, उसमें फैसला कौन रोल एयरफोर्स का होगा, उनकी या हमारी। अच्छा, एक चीज और एयर वाइस मार्शल साहब मुझे जरूर पूछना चाहूंगा, 65 की जंग में भी पाकिस्तान फिजाइया ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था, रोल सारे का सारा पाक फिजाइया का था, उनके एयर बेसिस तबाह कर दिए, उनके रनवेज तबाह कर दिए, जहाज तबाह कर दिए, और फिर MM आलम ने तो वो कमाल कर दिया था कि जो शायद फिजाई तारीख में, जंगी तारीख में हमेशा सुनहरे रूप से लिखा जाएगा कि जी जितने कम वक्त में 5 जहाज तबाह किए, ये यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है। कारनामा ये आज तक रिकॉर्ड है उनका। देखिए 7 सितंबर के दिन ये हुआ था, तो उस दिन का हम मनाते हैं यौम फिजाइया मनाते हैं, और उसमें और खूबसूरती उसकी ये है कि उसको इंडियंस भी एक्नॉलेज करते हैं जी, वो मानते हैं कि ये हुआ था और ये एक आदमी ने किया था जी। तो ये चीजें उनकी हाँ भी रिकॉर्डेड हैं। और उन्होंने 89 में यहाँ वो भेजे थे 2 रवि रिखी और पुष्पेंद्र सिंह, उन्होंने फिजाइया पे एक किताब लिखी थी और उसमें उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स टैली किए कि 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ और एयर फोर्सेस में अब क्या बेहतरी है और कौन सी बरतर होगी। तो ये देखिए अगली जंग जैसे मैंने कहा एयरफोर्स ने ही आपको जो है ना फैसला करवाना है उसका, उनकी या हमारी। ठीक है। नंबर 2 पे नेवी। अब आर्मी जो है ना वो उनका रोल प्राइमरी नहीं रहा। सही। ये अगर आप गल्फ वॉर 91 से लेके अब तक देखें सारा काम एयरफोर्स करती है, आर्मी बाद में उस जगह पे कब्जा करने जाती है। ठीक है। आर्मी जब जंगे फतह नहीं करती, आर्मी एरियाज में कब्जा नहीं करती। एक और चीज मैं आबिद राव साहब पूछना चाहूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान पिछले कोई 18-20 साल बल्कि 30 साल से वॉर एंड टेरर के खिलाफ हमारी एक ऐसी मुसलसल जंग जारी है कि हम मुसलसल जंग में हैं, हमारी एयरफोर्स, आर्मी, हमारे सारे इदारे जो हैं वो प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हैं और हमें बड़ा तजर्बा हुआ है, लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो अपनी खफत मिटाने के लिए कभी कभार वो कोई चुटकुले या आतिशबाजी कर लेती है, लेकिन जो प्रोफेशनल एक रवैया है वो दोनों मुमालिक की एयरफोर्स में, आर्मी में रवैये को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये जो वॉर एंड टेरर है, ये जब से ये स्टार्ट हुई थी आर्मी पब्लिक स्कूल पे जब हमला हुआ था उसके बाद जी, इसमें जो मेजर कामयाबियां मिली है 90% से ज्यादा टेररिस्ट एयरफोर्स ने मारे हैं। जी जी बिल्कुल सही। बिकॉज आर्मी के लिए तो मैन टू मैन फाइट होती है, उसमें जो है ना किल रेशो या मतलब जितनी कैजुअलिटीज आप उसकी करेंगे उससे ज्यादा आपकी हो सकती है। जी जी। लेकिन चूंकि टेररिस्ट के पास एयरफोर्स नहीं है, एयरफोर्स को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स की एक टारगेटिंग फिलॉसफी थी, आर्मी के साथ कोऑर्डिनेट करके उन टारगेट्स पे हमला किया और उनके एमुनेशन डंप्स, उनके कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर, उनके कंसंट्रेशन कैंप, उनके हाइड आउट्स, वो सारे एयरफोर्स ने तबाह किए। जो भाग रहे थे उनको फिर आर्मी ने एंगेज किया है और उनको अकेले इक्का दुक्का उनको टेररिस्ट को इन्होंने मारा है। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशंस की बड़ी कामयाबी है, एयरफोर्स बड़ा इफेक्टिवली इस्तेमाल हुई है इसमें और उस लिहाज से लेकिन एयरफोर्स आप देखेंगे बहुत शाय है, वो ना पब्लिक रिलेशनिंग करती ना टीवी पे आके इसकी बात करती। वो ठीक है, ये कौमी हमारे अफवाज का एक वो जॉइंट ऑपरेशन है, तो वी शेयर द क्रेडिट, वी डोंट एक्सक्लूसिव वो नहीं करते। अच्छा ये फरमाइएगा कि क्या भारत अब भी कोई सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करने की पोजीशन में है, ये करने की कोशिश करेगा, उस पर हमारा रिएक्शन क्या होगा, पाक फिजाइया का रिएक्शन क्या होगा? देखिए हमारा मुसलसल पिछले 30 साल से एक अहद है कि इंडिया जो भी करेगा उसकी कीमत हमने बहुत बढ़ानी है ताकि वो उसको सोचे ना। वो हर साल एक वो सेमिनार करते हैं दिल्ली में बैठ के कि जी पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस को हम खत्म कर सकते हैं। जवाब हर दफा आता है कि हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो कीमत उनकी ना बढ़ती जा रही है। अच्छा। कि उसके लिए हमने ये कितनी डिवीजन फौज तबाह होगी, कितने उनके जहाज गिरेंगे, कितने उनके इकोनॉमिक लॉस होगा, उसकी वजह से वो टल रहा है। अच्छा, एयरफोर्स एक वाहिद एजेंसी ऐसी जिसकी रेंज जो है जो आर्मी का रोल भी कर सकती है, जो नेवी का भी कर सकती है और अपना तो करती है। एयरफोर्स के पास रीच है, एयरफोर्स के पास लीथल वेपन है। अगर आप क्लासिक उस लिहाज से देखें तो पाकिस्तान एयरफोर्स का इस रीजन में बहुत बड़ा किरदार रहा है कि आपने दुश्मन को दूर रखा है। दुश्मन ने कई दफा कोशिश की, कारगिल में फुल डिप्लॉयमेंट हो गई थी, बल्कि कारगिल के दौरान भी तो हमने 2 तैयारे उनके मारे थे।
वो तो बॉर्डर पे जो थे ना उसमें एयरफोर्स इंगेज नहीं हुई थी, वो हाँ जी। सर्विस टू एयर वेपन से मारे थे। हाँ। और ये जो थे डिप्लॉयमेंट फिर उनकी हुई 2002 में जब उन्होंने पार्लियामेंट पे अटैक का ड्रामा किया था। जी जी 10 महीने दोनों फौजें रही आमने सामने, लेकिन जंग नहीं हुई, बिकॉज उसकी कीमत उनके अपने अंदाजे में इस कदर ज्यादा है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। हमारा तो कबाड़ा होगा डेफिनेटली, लेकिन उसका इतना ज्यादा होगा कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी डिटरेंस भी है और एयरफोर्स को इस चीज का एहसास है। हम इस कौम की भी बड़ी अजमत है कि ये कुर्बानी दे के एयरफोर्स की जरूरतें पूरी करती है। बिल्कुल सही। अब ये फरमाइएगा कि अब अगर कोई अभिनंदन आया तो एयरफोर्स फिर दोबारा चाय पिलाने की पोजीशन में है? देखें बड़ा बोलना चाहिए, लेकिन हमारी एयरफोर्स तैयार है। हाँ जी 24 आवर्स जी। और वी आर रेडी। इंशाल्लाह उसका ऐसा अच्छा अकाउंट देंगे जी। कि इस कौम को फख्र होगा जी, इंशाल्लाह। और ये दोबारा सर उठा के हमारे सियासी लीडर बेफिक्र है, कौम को बड़ा फख्र है अपने जवानों पर, अपने शाहीनों पर। वो बिलाशुबा हमारे लिए वो काबिल फख्र सपूत हैं कि जिनकी वजह से हमारी नींदें जो हैं वो पुरसकून है। बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल आबिद राव साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुमताज दिफाई तजियाकार। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमारे नाज़रीन के लिए वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि 27 फरवरी यकीनन पाकिस्तान की हिस्ट्री में तो यादगार रहेगा, लेकिन इंडियन हिस्ट्री में बड़ा यादगार रहेगा कि पाकिस्तान फिजाइया ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद क्रॉस करने पर 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे, और उसका एक पायलट ऑफिसर विंग कमांडर अभिनंदन जो था वो पाकिस्तान में जब पैराशूट के जरिए उतरा तो पहले तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह उसकी ज़ियाफ़त की, उसकी जिस तरह उसकी मेहमान नवाजी की, वो यकीनन एक अलग अमल था। लेकिन दूसरी तरफ फिर जब उसे पाकिस्तान आर्मी ने और एयरफोर्स ने कैप्चर किया, वहाँ से रेस्क्यू किया, तो उसके बाद हमने देखा कि वो ज़रा होश में भी आया। फिर उसकी जो जितनी भी फुटेजेस मौजूद हैं, जितना इवन वो जब रुखसत हुआ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी, पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और पाकिस्तानियों ने जो उसे चाय पेश की थी वो उसे हमेशा यादगार रहेगी। क्या फरमाएंगे आप इस बारे से? देखें बिल्कुल ये बात ठीक है, और एक से खास तौर पे जिस प्रोफेशनल तरीके से जी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया ने जब एयर स्पेस वॉर लीड की तो उसके बाद ये 2 जहाज गिराए, उनके पायलट को अरेस्ट किया, और फिर एक गुड विद जस्टिस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को और खास तौर पर इंडिया को अमन का पैगाम देते हुए उनको रिलीज भी कर दिया। जी जाने से पहले जो उसने बात की और पाकिस्तान मिलिट्री के बारे में, आई थिंक वो सबको पता है। उसने कहा ये इंडियन प्रोपेगेंडा होता है, पाकिस्तानी फौज बहुत वेल ट्रेन्ड है, वेल बिहेव्ड है, और मैंने इसका अमली मुजाहरा भी देख लिया। जी जी बात यह कि इससे एक तो ये फायदा हुआ कि दुनिया में एक पैगाम चला गया कि इंडिया अग्रेसर है, ठीक है। इंडिया स्टेट टेररिज्म करता है, इंडिया कश्मीर पे खासवाना कब्जा किया हुआ है, जी। और वो पाकिस्तान को शो करता है कि पाकिस्तान प्रॉब्लम करता है। तो ये एक परसेप्शन काफी चेंज हो गई। अगर आप ट्रम्प की स्पीच भी देखी हो जी तो आपने उसमें भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान ने अमन के लिए बहुत काम किया है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत काम किया और दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। ये वहां पर जब ये बात की तो हमने देखा पूरे इंडिया के क्राउड को साफ सूंघ गया। ठीक है। तो इन लिहाज में देखें तो पाकिस्तान ने बहुत एक अच्छा मुजाहरा भी किया, ये भी बता दिया कि हमारी फौज बैटल हार्डेंड है, जी they are well trained, they are led by excellent chief army staff. On the contrary, इंडियन आर्मी जो है ये अनट्रेन्ड है, अनप्रोफेशनल है, इनके सिपाहीसालार भी अनट्रेन्ड है। ये सिर्फ आते कश्मीरी औरतों बूढ़े बच्चों को शहीद कर सकते हैं, या पाकिस्तान में सिर्फ ये कुछ दरख्त गिरा सकते हैं और एक कबाब मार सकते हैं। तो ये फर्क है जो दुनिया को पता चल गया। फिर ये भी अंदाजा हो गया, इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट गन बिहाइंड द मैन। पाकिस्तान की फौज जो शीली लड़ाका है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में अब इंडियन पब्लिक को भी पता चल गया है, और इंडिया का मुंह इतना मुंह काला हो गया है कि अब उनके पास कोई बात नहीं है सवाल के वो टेबल पे आए और बैठ के मजाक। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, हमेशा हमने देखा है कि वो अपनी अददी बरतरी पर बड़ा घुमंड में रहता है, बड़े गुरूर में रहता है, लेकिन जब चित्रौल होती है वो MM आलम की सूरत भी हो कि 1 मिनट में 5 तैयारे मार गिराते हैं, या पूरी 65 में पूरी भारतीय फिजाइया पे बल्कि एयर पे पूरे पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का तसल्लुत था, वो राज करती रही 14 दिन तक। फिर उसके बाद हमने देखा कारगिल में उनके तैयारे वो हमने मार गिराए, फिर अभी जो तैयारे वो
भारत सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा करता रहता है, लेकिन कभी कोई सबूत, हमने जो तैयारे बाहर गिराए उनका जो था रैकेज था वो हमने पूरी दुनिया को दिखाया। भारत ये दावा करता है कि पाकिस्तान का F-16 उसने मार गिराया, लेकिन आज तक कभी उसका कोई एक सबूत नहीं दे सका। जी, यही सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के और उनके जो जर्नलिस्ट, उनके जर्नल्स ने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के DGISPR का कांटेक्ट अपनी आवाम से कमाल का था जी। उन्होंने अपने अवाम को, अपने तमाम लोगों को आगाह रखा कि व्हाट इज हैपनिंग विद इंडिया जी। और साथ ही साथ जो बात भी की उसका प्रैक्टिकल मुजाहरा किया कि वो चीजें, चाहे वो सफारतकारों को उस जगह पे ले जाने की बात हो या और गवाही देनी हो, या अगर इंडिया का जहाज गिरा तो उसके पायलट को पकड़ के दिखा दिया, उनके जहाज के टुकड़े दिखा दिया। और ऑन द कॉन्ट्री इंडिया के झूठ को वो एक चीज भी नहीं दिखा सके। ना उन्होंने कहा कि हमने 350 लोगों को, दहशतों को मारा, वो दिखा सके जी। फिर जहाज उन्होंने शो किया कि पाकिस्तान का एक F-16 जहाज गिरा, जो कि बिल्कुल झूठ साबित हुआ जी। वो भी उनके अपने जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू के दरमियान में उनको झूठा साबित कर दिया। फिर उसके बाद जब उनके चीफ आर्मी स्टाफ ने लास्ट टाइम भी कहा जी हमने पाकिस्तान में आर्टिलरी फायर किए हैं, नुकसान मचाए, कोई क्वाड्रेंट थी, वो भी DGISPR ने वहां पर सवालकारों को ले गए, दिखाया, वो भी झूठा साबित हो गया। तो इंडिया ने खुद ब खुद अपना मुंह इतना ज्यादा काला कर लिया है, इतना ज्यादा कि आप वर्ड इनकी बातों में यकीन नहीं करते, बल्कि वो सराहते हैं पाकिस्तान मिलिट्री को, इसलिए कि हमने प्रैक्टिकल मुजाहरा करके दिखाया, नॉट ओनली इंडिया अगेंस्ट इंडिया, बल्कि पूरे मुल्क से सिंगल हैंडेड प्रोफेशनल तरीके से हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी। तमाम दहशतगर्दों को मुल्क से मार दिया, भगा दिया, जो कि 51 कंट्री इंडियन जो अमेरिकन कोलिशन सपोर्ट ट्रूप से वो नहीं कर सके अफगानिस्तान में, विद लॉट ऑफ मिलिट्री माइट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सब कुछ। तो ये आप दुनिया पाकिस्तान में अपनी फौजियों को भेज रही है ट्रेन करने के लिए। ये इसका इतराफ तो आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जो है वो दौरा पाकिस्तान में कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में अमन के क़याम के लिए जो कुर्बानियां पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने दी हैं वो दुनिया में शायद किसी और मुल्क ने नहीं दी हैं। जी, मुझे सिर्फ सबसे एक बात का अफसोस है कि देखें, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए बहुत कुछ किया। हमने अपनी ट्रुप्स की सेक्रीफाइस की, हमने अपने 60-70 हजार सिविलियन शहीद किए, इकोनॉमिक लॉस किया, और हमने दहशतगर्दी खत्म कर दी। बजाय इसके कि अमेरिकन प्रेसिडेंट शुड कम टू पाकिस्तान और हमारी इस कुर्बानी को रिकग्नाइज करें, आई वुड से इवन टू एन एक्सटेंट कि वो यहाँ के अप्रिशिएट करें, बजाय इसके वो इंडिया जाते हैं, जिससे सवाए अपनी कमर्शियल एक्टिविटी के और कुछ भी नहीं किया, बल्कि इंडिया को लेट ऑन किया। चाहे वो साउथ चाइना सी की बात करें या चाइना का अगेंस्ट उनको फ्रंट में लाने की बात करनी है, वो भी नहीं वो कर सके। और तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अमेरिका हैज टू ड्रॉ लाइन के ठीक है वो बड़ा मुल्क है, तजारती उनके फायदे उनके साथ मौजूद हैं, $3 बिलियन का मुआहदा भी कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अचीव कर सके जो उन्होंने इंडिया से उन्होंने उम्मीद रखी थी? दे हैव मेजरेबली फेल्ड। ये एक सिर्फ दहशतगर्द इंतहा पसंद का कमांडर है, हिंदू इंतहा पसंद है, ये गुजरात में मुसलमानों का कसाई है, ये कश्मीरों से जुल्म कर रहा है। सिर्फ अपनी मजबूरी से इंडिया अमेरिका को ये बातें छोड़नी चाहिए। दे आर द वर्ल्ड लीडर्स, दे हैव टू बिहेव लाइक वर्ल्ड लीडर और इंसाफ की बात करें। आप ह्यूमन राइट चैंपियन बनते हैं, उसमें आपने क्या किया, ये बातें नजर आती है। जी, अच्छा हारिस नवाज साहब, एक चीज जो मैं देखता हूँ, आप भी बल्कि देखते होंगे, इसको फॉलो भी करते होंगे, कि भारतीय आर्मी अपनी हुकूमत को फॉलो करती है और भारतीय मीडिया जो है प्रवोक करता है अपनी आर्मी को, एयरफोर्स को, कि वो किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है कोई इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह का कोई ड्रामा करें, लेकिन जब मुंह की खानी पड़ती है तो फिर उनको सांप सूंघ जाते हैं। क्या वजह है कि भारत में ये इंतहा पसंदी क्यों फैल चुकी है मीडिया में? देखिए, इसलिए फैल चुकी है कि वहाँ उनका बड़ा सख्त कंट्रोल है और वो बड़ा ही इसके ऊपर स्टेट कंट्रोल है इंडिया का। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वो अपनी रॉ के खिलाफ बात कर सके, अपनी हुकूमत को निशाना बना सके, क्योंकि इनके इंतहाब से दूसरे मजा के हमले कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, मार के डराते हैं लोगों को, जिसकी वजह से ये वहाँ पर रहता है। और यहाँ पर हमें समझने की बात है कि ये बातें पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में आपके मीडिया को जब आर्मी की बात हो, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट की बात हो या हमारी सिक्योरिटी की बात हो, तो वहाँ फुल सपोर्ट करना चाहिए। ये हुकूमती पॉलिसी होनी चाहिए, इसको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर बल्कि हम लोग अपनी कमजोरी दिखाते हैं कि हमारे कुछ मीडिया हाउसेज जो है वो अपना नुक्ता डिफरेंट रखते हैं, वो अपना पॉइंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एजेंडा चला रहे होते हैं। ये चीजें हमें बहुत सख्ती से देखनी कि इंडिया में, मैं उनके बहुत चैनल पे जाता हूँ, मैंने देखा है कभी भी वो रॉ के खिलाफ, इंडिया हुकूमत के खिलाफ बात नहीं करेंगे, नॉट इवन लिसन।
دیکھیں سر نیشنل انٹرسٹ پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سرکاری میڈیا پہ تو جس طرح ہم بیان کرتے ہیں جس سے انڈین وزیر اعظم بھی تنگ ہے, کہتا ہے کہ جی پاکستان ریڈیو پاکستان جو ہے اس نے ہمارا ستیہ ناش مار دیا ہے. لیکن بات یہ کہ پرائیویٹ میڈیا پہ اور بلکہ جو پرائیویٹ ایف ایم چینلز ہیں جو ہمارے سرحدی علاقوں میں, ان کو تو ہمیں بڑے گورنمنٹ کو چاہیے کہ بڑے میگا واٹ کے جو ہے ان کو ٹرانسمیٹرز دیں تاکہ انڈیا پہ دور تک جو ہے ہمارے وہ پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ پینیٹریٹ کر سکیں اور پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ انڈین عوام تک پہنچا سکیں. دیکھیں یہاں پر اب ضروری ہے نا کہ یہ آپ کی میڈیا پالیسی ہے, آپ کی منسٹری آف انفارمیشن ہے, منسٹری آف آپ کی ایون آپ کی ISPR, they have to sit down, work out a policy, اور پھر میڈیا ہاؤسز کے اونرز کو بلائیں, ان سے ڈسکشن کریں, پاکستان کا نقطہ نظر بتائیں کہ ہم کن لائنز کو فالو کرتے ہیں, ہم نے انڈیا کے کن مسائل کا ذکر کرنا ہے اور کیا بتانا ہے کہ انڈیا میں اس اکانومی کیا ہے, وہاں پر ٹیررزم کیسی ہے, وہ دہشت گردی کو کیسے پروموٹ کر رہے ہیں, وہ انٹرفیس ہارمنی کے بجائے وہ انٹرفیس جو ایک جو دشمنی پیدا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, اس سے انڈیا کو کیا مسائل ہوں گے, انڈیا کی عوام کو نقصان کیا ہو رہا ہے, یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کے لیے جو ٹیکنالوجی چاہیے, جو چیزیں بھی چاہیے پرائیویٹ چینلز کو, وہ ہمیں مہیا کریں. ٹھیک ہو گیا سر. یہ فرمائیے گا آخر میں کہ اس وقت جو سچویشن ہے, کیا بھارت میں کوئی اور ابھینندن اس طرح کی کوشش کر سکتا ہے, اور اگر کوشش کرے پاکستان کی ایئر فورس میں ماشاءاللہ, پاکستان کی آرمی میں, پاکستان کی بحریہ میں ایسی صلاحیت ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں, واپس اگر اتارا جاتا ہے تو پھر کیا سمجھتے ہیں کوئی اور سرجیکل اسٹرائک ہو سکتی ہے اس طرح کی؟ دیکھیں انڈیا نے بڑی اوپنلی نریندر مودی نے کئی دفعہ تھریٹ کیا کہ جی ہم ایک تو وہ جو 27 فروری کو بھولے نہیں ہیں, ہر دفعہ وہ بات کرتے ہیں ہم کو فلیگ آپریشن کریں گے, اخلاف جان کے بہت شور مچاتے رہتے ہیں, اور پرائم منسٹر پاکستان نے جی عوامی صاحب نے بڑا سخت ان کو وارن بھی کیا کہ اگر انڈیا نے کوئی مس ایڈونچر کی, یہ چاہے کشمیر کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کی بات کرتے ہوئے, تو ہم بڑی سختی سے جواب دیں گے, بس ان کا جواب پتھر پہ دیں گے. اور پاکستان نے امریکہ کو, دوسرے ممالک کو, اتحادی ملکوں کو, چائنا کو, رشیا کو سب بتا دی ہے کہ اس کے بڑے خطرناک اس لیے ہوں گے کہ دونوں نیوکلیئر ملک ہیں, اور اگر انڈیا کی شرارت کی وجہ سے کہیں بھی تھوڑے سے بھی حالات خراب ہوئے اور لڑائی کا ٹریگر لگ گیا, تو پھر لڑائی کے ڈائنامکس ہوتے ہیں, کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ کہاں جا کے اینڈ ہوگی, یہ بھی نہیں پتا ہوتا. اس لیے وہ وارن کرتے رہتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن ہماری امن کی پالیسی کو ہماری کمزوری مت سمجھیں, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. ہماری فوج لڑاکا ہے, ہماری میزائل ٹیکنالوجی آپ سے بہت بہتر ہے, اس لیے کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو آئندہ کے لیے پھر کسی کے کنٹرول میں نہ رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے وقت دیا. یقیناً بڑی اچھی بات کی ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہ پاکستان جو ہے اس وقت جس پوزیشن پہ ہے, ہم پھر اینٹ کا جواب پتھر پہ دینے کی پوزیشن میں. اگر بھارت کو اس طرح کی سرجیکل اسٹرائک کرے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو وہ بھگتنا پڑے گا. جس طرح ابھینندن کو تو ہم نے ایک امن کا سفیر کے طور پر یا امن کا پیغام کے طور پر ہم نے ان کو واپس بھیج دیا, لیکن اب جو ہوگا وہ پھر ایسا نہیں ہوگا. بھارتی را کے ایجنٹ کلبھوشن یادیو ڈیفینیٹلی پاکستان کی حراست میں ہے. بھارت عالمی عدالت انصاف میں بھی اس کے خلاف کیس ہار چکا ہے, اور بھارت کا جو رویہ ہے, بھارت کا جو نیریٹو ہے اس حوالے سے کیا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بھارت اور پاکستان کے بیچ یدھ کا اعلان نہیں ہوا ہے, دونوں ہی غیر فوجی کارروائی بتا رہے ہیں, مگر چینلوں پر پرانے ویڈیو دکھا کر یہ احساس کرایا جا رہا ہے کہ یدھ ہو گیا ہے. آپ کے اندر بھاوناؤں کا ابال پیدا کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ 10-15 منٹ تک ہم نے آپ کو خبریں بتائی, لیکن کوئی پرانا ویڈیو ساودھانی پوروک استعمال نہیں کیا. اسٹوڈیو میں, چینلوں میں وار روم بن گئے ہیں. یدھ کے کئی چرن ہوتے ہیں, اور ان چرنوں کے بارے میں آپ تک سوچنا پہنچانے کے لیے چینلوں کے پاس نہ تو صبر ہے نہ ہی بھاشا. مارو کاٹو جلا دو گھس گیا ٹائپ کا اس طرح کی بھاشا کا استعمال ہو رہا ہے. یقیناً پوری پاکستانی قوم کو پاکستانی ایئر فورس پر, آرمی پر اور بحریہ پر فخر ہے, اور یقیناً فضائیہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے, اور فضائیہ کے تمام ہیروز کو پوری پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے. ہمارے دشمن کو اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی فضاؤں پر پاکستان ایئر فورس ہر وقت چوکس رہتی ہے, نظر رکھتی ہے. اور پاکستان ایئر فورس یقیناً دنیا کی ان چند ایئر فورسز میں سے ہے کہ جو اپنے دشمن کو تاک کر مارتی ہے, تاک کر اس کے نشانے لیتی ہے. وہ ہم نے ایم عالم کا دور دیکھا ہو, سیشل چودھری کا ہو, سرفراز رفیقی جیسا سوسائڈ اٹیک کرنے والا عظیم ہیرو ہو,
کہ جس کا جہاز بھی خراب ہو گیا لیکن اس نے جا کے بھارتی ایئرپورٹ پر جس طرح رن وے پر جا کے جس طرح جہازوں میں اپنا جہاز گرا دیا، یہ یقیناً یہ جذبہ شہادت ہی ہے کہ جو ہمارے ایئر فورس کو، ہمارے ایئر فورس کے افسرز کو، ہمارے ایئر فورس کے جوانوں کو، ہماری آرمی کے جوانوں کو، آفیسرز کو دنیا کے تمام ایئر فورسز اور آرمی سے ممتاز کرتی ہے. دنیا کی بہترین فوج، دنیا کی بہترین ایئر فورس اور دنیا کی بہترین بحریہ وسائل کی کمی کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو خود کفیل بنا لیا ہے. اب دشمن کو یہ کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان ایئر فورس، آرمی اور بحریہ اس ملک کی سرحدوں کی، اس ملک کے جغرافیے کی اور اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کی محافظ ہے. اس لیے آئندہ اسے کوئی بھی سرجیکل سٹرائک کی یا اس طرح کی کوئی کانسپرینسی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا ہوگا. اپنے میزبان میاں طارق کو اجازت دیجیے گا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.